Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is CK Yadav, teacher of English. I hope you all are in good health during this pandemic and during this lockdown. My dear students, as you all know that in these 2 months the students could not attend the classes, schools because of the lockdown. But my dear students, education we talk is inevitable, so we can't wait any longer. So our management had decided to take the online classes. So I think you all are informed earlier, and today I am going to teach you the first chapter of English of standard 6th. That is a very beautiful poem, Stopping by Woods. Stopping by Woods, this poem I am going to teach you. So my dear students, I hope that you all must have the books, because all the books are available, and I think most of the students have bought the books, but those students who haven't bought till now, so I suggest you to buy the books, because if you will have the books, it will be easier to understand. So now, without taking time, I am going to teach you this poem, Stopping by Woods. This poem is written by an American poet, Robert Frost. Okay, but before starting the poem, we will know some vocabularies. I will discuss before you some important vocabularies which are used in this poem. So very first word is woods, forest. Wood means, my dear student, you know lakri, but here woods means forest, jungle. Watch, देखना, to observe. ओके, आप कहेंगे कि सी का मतलब भी देखना होता है, लेकिन सी और वॉच में डिफरेंस है. सी जनरली वॉट एवर यू सी इज सी. साधारणतः जो कुछ आप देखते हैं वो सी कहलाता है. बट टू ऑब्जर्व, किसी चीज को उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखने के लिए, किसी चीज को देखना मेरा उद्देश्य होता है, उस से कुछ चीजें का मीनिंग पता करना होता है, मेरा उद्देश्य होता है, तो उसे वॉच कहते हैं. वॉच, ऑब्जर्व, देखना. नेक्स्ट स्नो. स्नो सॉफ्ट आइस, बर्फ. आई थिंक यू ऑल नो. नेक्स्ट क्वेर. क्वेर स्ट्रेंज मीन्स विचित्र. मतलब नॉर्मली जिस चीज़ को हम नहीं देखे होते हैं, जिससे हम परिचित नहीं होते हैं, वो हमारे लिए स्ट्रेंज होता है, वो हमारे लिए विचित्र होता है. फ्रोजन. फ्रोजन मीन्स कवर्ड विद आइस, यानी बर्फ जब जमा हुआ बर्फ, यू कैन से. शेक, मूव, हिलाना. नेक्स्ट इज डाउनी मीन्स फ्लेक ऑफ आइस, बर्फ के टुकड़े. लवली, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. प्रॉमिसेस, असाइनमेंट, वायदे.
प्रोमिसेस मीन्स असाइनमेंट मीन्स वादे, जैसे कि जब हम किसी से किसी चीज़ को करने का वायदा करते हैं उसी को प्रॉमिस या असाइनमेंट कहा गया। हार्नेस बेल्स मीन्स बेल्स विच इज टाइड इन द नेक ऑफ हॉर्स। घोड़े के गर्दन में जो घंटी टांगी हुई होती है उसी को हार्नेस बेल्स कहते हैं। देन माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम beneficial words from the poem, and now it's time to start studying the poem that is written by Robert Frost, an American poet. I'm going to start the poem, but marker please. Before starting the poem, we will see something here, that four stanzas are used in this poem. And each stanza contain 4 lines, so 16 lines. Okay, you know, the words used in this poem are of different syllable: single syllable, double syllable and polysyllable. Mostly syllables are used in this poem are of single syllable, or we can say monosyllable. जो single syllable है वही monosyllable है. So now I am going to start. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see one stopping here to watch his woods fill up with snow. Here rhymes is no, though and snow. In this poem, 3 words are rhyming words in this first stanza of this poem. Okay, no, though and snow. So once again, whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see one stopping here to watch his woods fill up with snow. This poem is written by Robert Frost. Just I am going to describe the scenario when the poet write this poem. He was coming from the market after selling some things. In the way, he stopped at a place. जब वे बाजार से कुछ सामान बेच करके वापस घर आ रहे थे, रास्ते में जब एक ऐसी जगह मिलती है जो जगह इन्हें आकर्षित करती है, उस जगह पे रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वहां रुक करके कुछ चीजें को देखते हैं, कुछ चीजों का अनुभव करते हैं और उसके इंस्पिरेशन से, उस सिनेरियो को देखने के बाद जो इनको एक इंस्पिरेशन मिलती है जिससे वो इस पोएम को लिख देते हैं। चलिए अब लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसके हैं? मुझे लगता है कि मुझे पता है।
हिज हाउस इज इन द विलेज दो, जिसका ये जंगल है ना उसका घर गांव में है। पोएट कहते हैं कि हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो, ये जंगल किसके है मुझे लगता है कि मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, जिसका ये जंगल है उसका घर गांव में है। He will not see one stopping here to watch his woods fill up with snow. वो किसी को देख नहीं सकता कि उसके जंगल में कौन खड़ा है। उसके जंगल जो कि बर्फ से ढकी हुई है, एक खूबसूरत सा दृश्य बना हुआ है, उस दृश्य को वो जंगल वाला देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसका घर गांव में है और गांव से वो इस दृश्य को देख नहीं सकता जो दृश्य को मैं देख रहा हूं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, मेरे जो घोड़े हैं अर्थात पोएट के जो घोड़े हैं, जिस घोड़ा पे सवार होकर वो बाजार से घर वापस हो रहे हैं, वो बताते हैं कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। क्वेर मीन्स स्ट्रेंज, नॉट फैमिलियर, विचित्र, अपरिचित। यानी माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, मेरे इस छोटे घोड़े को यह दृश्य विचित्र लग रहा होगा, अवश्य ही उसे विचित्र लग रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि वहां न तो फार्म हाउस है, मीन्स न तो स्टेबल है, न घुड़साल है, न रहने को घर है, न खाने को चारा है। उसके लिए तो एकदम विचित्र प्लेस है वो। ऐसा पोएट का मानना है कि शायद मेरे घोड़े को ऐसा अनुभव हो रहा हो कि जिस जगह पे हमें रोका गया है, जिस जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, शायद ये जगह मेरे लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़े को अस्तबल चाहिए होता है, उसे चारा चाहिए होता है, ना तो वहाँ अस्तबल है ना ही चारा है, तो उस बेचारे को वो जगह स्ट्रेंज लग रहा है, अर्थात वो विचित्र लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ये परिदृश्य जो पोयम में हमने देखा, ये विंटर सीजन को डिस्क्राइब करता है कि जिस समय में पोएट उस वुड्स में स्टे करते हैं, उस समय बर्फ की टुकड़े गिर रही है। आगे के स्टेंजाज में हम लोग देखेंगे हवाएं चल रही है, और जो शाम है, जिस समय वो इस दृश्य को देख रहे हैं, सुंदरता की अनुभव कर रहे हैं उस सिनेरियो से, वो समय कैसा समय है? इट वुड बी एज क्वेश्चन। सो ध्यान से देखेंगे इसको कि अगर प्रश्न किया जाए कि किस सीजन की बात हो रही है, कौन समय की चर्चा हुई है इस पोएम में, तो जिस समय पोएट इस सिनेरियो को देखता है, जिस समय इस दृश्य को वो देख रहा है, उस समय वो कैसा शाम है? एक तो ठंडी है, और ठंडी में भी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, उस वर्ष का सबसे काली शाम है, सबसे अंधेरी शाम है। सो we have completed 2 stanzas of this poem, and next I will teach you tomorrow, and I think you enjoyed half of the poem, and next half we will do in the next video. Thank you very much.